Sorry. So, hi everyone, a very good evening and a very warm welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. So, Srikar, Namaskar, Bonjour, Adab. Let's get started with today's session. तो आज हम करने वाले हैं रीबिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स. ठीक है, so let's get started on that note. Please let your friends know that the session is here. They should come and join just in case if they're not here, share the video with them. So let's get started. So we're doing making of the global world. Okay. And we have done how the interwar economy looked like. Now, one part of mass production of how within the interwar economy it developed and how mass production was going to help. What do we mean by mass production is very important. That portion we'll be doing in today's session. It is also going to be relevant in the age of industrialization. And age of industrialization भी आपको मतलब बोर्ड्स में नहीं आएगा लेकिन आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस में है. तो उस पढ़ने से मतलब जब आप इस पोर्शन को पढ़ते हो it becomes very relevant over there. So for that purpose, we'll be paying good amount of attention to the mass production section of this chapter as well. And in general, to understand how industrialization started and what helped, where did this new system of industrialization came from, that portion plays a very important role. So let's begin. We'll start with a quick introduction. So hi everyone, मेरा नाम अंकना है और मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe, coming with an experience of more than 9 years in the field of education, where I've taught the students both online and offline for CBSE and ICSE. I have done my studies in the field of humanities, hence I specialize both in English and social science. Now we'll have a quick recap of what we have done in the previous session. So previous session में interwar economy explore किया था हमने. साथ ही साथ हमने इसकी भी बात की थी कि how did the industrialization affect the trading in India. So I'll start by consolidating that. So in the previous session, we understood, first of all, historically, we saw that how the World Trade Centers used to lie in India, China, towards Asian countries, the eastern portion. But जैसे अमेरिका की discovery होती है, तो despite of the fact that Europe was in a very bad state in the 15th, 16th century with the population outburst, there was like a lot of hunger, starving, unemployment, poverty. But discovery of America helped a lot to the European countries by getting their minerals and precious metals and a lot of resources from America to establish itself once again. And there was shortage and colonization, of course, was happening. And the shortage of labor was handled by contractual laborers being hired. And then, of course, they by colonizing, they had somewhat placed their burden of the economic growth on other countries और उनके resources इस्तेमाल करके they kept on growing very well, the European countries, and that's how they recovered from this decline that was there. Okay. Now from then onwards, we were talking about how the Indian trade and colonialism at a global system went ahead. So we saw that जो हमारा कॉटन का प्रोडक्शन होता था वो काफी फाइन होता था. ठीक है, द रॉ मटेरियल एंड द क्लॉथ बोथ वर ऑफ ग्रेट क्वालिटी एंड हेंस वेरी मच हाई इन डिमांड अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड. ना जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है और प्रोडक्शन आपका ब्रिटेन और ऐसे सारी कंट्रीज में शुरू हो जाता है, ब्रिटेन टू बी प्रिसाइज बिकॉज ब्रिटेन was the nation which had colonized India. We understand that they were facing a very big competition from us. So they started restricting the import to Britain that was happening from India by imposing a lot of taxes and tariffs, which made it very expensive for the people to buy it over there, hence discouraged the imports that they were doing from us, which means our exports to Britain started declining. And we could see that from 30% within the next few years, it went down to 15% in a decade or so. And then further ahead, it further declined. And then on top of it, जिस चीज का प्रोडक्शन बढ़ गया और इंक्रीज हो गया by 1870s, like the end of the century, we'll see that production, that the export was from 30 went down completely to 3%. फिर हमने ये देखा कि
जो हमारा एक्सपोर्ट था रॉ मटेरियल का, क्योंकि अब वो प्रोडक्शन कर रहे थे एंड आवर रॉ मटेरियल वाज रियली ग्रेट इन क्वालिटी, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। वो जहाँ पे पहले 5% हुआ करता था एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, वेंट अप टू 35% बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। सो वी कैन completely see that between the completely manufactured product and the raw material, how the switch had happened. So that was very, very important, how it kept on changing. And not just that, we also understand that other countries that we were trading along with, Britishers had completely taken those markets as well, because there also they were kind of facing a competition because of India being present over there. Apart from cotton, if we talk about other materials जैसे कि ओपियम, टी, इसमें भी ट्रेडिंग चल रही थी। ओपियम के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे हम इंडिया, और हमारा ओपियम जो एक्सपोर्ट होता था चाइना में, चाइना से जो पैसा रिटर्न में आना था ओपियम के, उस रिटर्न में उस पैसे के जगह ब्रिटिशर्स यूज्ड टू गेट द टी विच दे वुड सप्लाई टू यूरोप, एंड दिस इज हाउ ऑल आवर प्रॉफिट वुड बी यूज्ड बाय देम, एंड वी वर नॉट ग्रोइंग बट दे वर फाइनेंशियली मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। दे वर कॉन्स्टेंटली इन द ट्रेड सरप्लस, यानी कि उनका जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट था वो हमेशा बहुत एक्स्ट्रा रहता था बिकॉज ऑफ ऑल द मनी दैट दे वर मेकिंग फ्रॉम इंडिया। वो प्रॉफिट बहुत हाई था, तो बाकी कंट्रीज से अगर वो लॉस भी मेक कर रहे थे बिकॉज दे वर नॉट एक्सपोर्टिंग एज मच, दे वर इम्पोर्टिंग, विच मीन्स दैट दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज rather than selling. They were compensating all of that money with the trade surplus, the profit that they were making with the help of Indian trade. ठीक है, साथ ही साथ इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके उन्होंने जिस लेवल पे ट्रेडिंग की, उससे दे वर ऑल्सो एबल टू पे देयर होम चार्जेस। दैट्स अनदर वेरी की टर्म। Home charges were basically the money that they would have to give to their employees, government employees and officials and traders. उनको pensions जो देना था, सारा income जो है लोगों का, वो हमारे profit के पैसे से ही they used to recover. Then we saw that how the First World War broke, and it was the first time where a modern war was witnessed because technology had been introduced, so automatic guns and bombs and all of these things were coming in, and that is why the amount of destruction that the First World War caused was something that was never witnessed before earlier in the history by the people of the world, and it was very, very catastrophic and created a lot of instability in terms of economy, in terms of politics. तो वहां पे हमने देखा कि allies जो कि आपके ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस and later on joined by US were fighting with the central powers of Germany, Austria, Hungary, Ottoman, Turkey, Bulgaria. So यहाँ पे war शुरू होता है, which just starts with two countries. Other countries start getting into the war by helping the other countries, but it soon turns into a war where you can say entire Europe definitely was on war, but the other parts of the world also get dragged in directly or indirectly. Like US got dragged directly, but countries like India got dragged indirectly because we were colonized by those European powers like Britain, which were directly participating into the war. अब ये पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, तो यहाँ पे हमने नए इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ देखा, जैसे कि मशीन गन्स, ऑटोमेटिक गन्स थी, एयरक्राफ्ट्स का यूज, केमिकल वेपन्स का यूज, विच लेड टू डेथ ऑफ सम 90 लाख पीपल एंड 2 करोड़ पीपल वर अराउंड इंजर्ड. एंड by the end of the war, because only the younger generation, the working population, were majorly going and fighting the war and joining the army. We also understand that either a huge chunk of them were dead, or they had become handicapped or unfit to be working properly. So also the working population was on a decline, which would also impact the economic stability or growth of the world in general, not just specific nation. But we see a certain transition where the women had started taking the responsibilities which were traditionally earlier taken by the men, and a lot of restructuring at this time also happened in terms of production. जो भी production otherwise पहले बाकी चीजों की होती थी, उसको बंद करके war related goods को produce किया जा रहा था, especially with the countries which were directly in the war. So other countries like US, Australia, New Zealand, Canada, which were not associated with the war, they started taking up the place of manufacturing and replacing them. And we see that this helped US gain a lot of money because they had become one of the major producers for the necessities, for providing and producing the necessities for, in general, the people around the world. And that helped them revive from an international debtor to an international creditor as well.
ठीक है, तो अब ये वॉर की प्रॉब्लम है, अब इस वॉर से हम रिकवर कैसे करते हैं, दैट वी गोना अंडरस्टैंड टुडे. सो इट इज वेरी क्लियर वन थिंग, दैट ब्रिटेन वाज अंडर विच वाज द लीडर ऑफ द वॉर इनिशियली हैड कंप्लीटली डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ इट. एंड जो इंडस्ट्रीज थी जैसे कि इंडिया में, जापान में, उन्होंने अपनी जगह बना ली थी. अब इंडिया यहाँ पे कैसे आ गया, दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग टुडे. एंड हाउ डू वी रिकवर फ्रॉम देयर, दैट ऑल्सो विल अंडरस्टैंड. विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द राइज ऑफ द mass production and consumption. So please let me know if you guys have had a quick read of what we have done before this or not. Now I just want to take a moment to let you know that we have started new batches. 2 बैचेस पहले ही शुरू हो चुके थे आपके 12th of April और 20th of May को. अब हमने नया बैच शुरू करना है और आपका 19th जून को भी बैच लॉन्च है, 17 जुलाई को भी एक बैच लॉन्च है. तो ये सारे बैचेस आ रहे हैं इन सारे डेट्स पे. तो अगर आप आपके फ्रेंड्स कोई भी सब्सक्रिप्शन को इम्बाइब सिंपल के लेना चाहता है, सो दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर देम टू बी अ पार्ट ऑफ द बैच राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड द चैप्टर्स दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड बिफोरहैंड विल बी डन टुवर्ड्स द एंड, सो देयर विल बी नो मिस दैट you guys will be having, plus midterms revisions and final revisions all will be a part of these Imbibe Simple Life classes. The best part of Imbibe Simple subscription with the live classes and other things is that this is a single subscription for all examination goals. आप सिर्फ जब subscription लेते हो तो क्लास 10th की, क्लास 9th की, किसी specific goal की नहीं लेते हो. Everything that is there on Imbibe becomes accessible for you. So that's the beauty of these subscriptions, you guys. And it comes with pre-class activities, post-class activities. तो लाइव सेशन के साथ जब आप थोड़ी सी पढ़ाई करके पहले ही प्री रीड मटेरियल के साथ लाइव सेशन अटेंड करके थोड़ा सा पोस्ट क्लास एक्टिविटीज के साथ प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी उस कॉन्सेप्ट और टॉपिक की डेप्थ इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप उसमें टेस्ट जब लेकर देखोगे तो आपको क्लियर डिफरेंस फील होगा इन योर परफॉर्मेंस, इन द आउटपुट ऑफ द रिजल्ट्स दैट यू विल बी प्रोड्यूसिंग. एंड it kind of prepares you almost like 60 to 70% from examinations perspective. बचा हुआ 30 और 20-30%, 40% का प्रिपरेशन रिविजन के साथ, एग्जाम के पहले क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ, स्कूल के क्लासेस के साथ अपने आप हो जाता है. यानी कि एग्जाम के पहले हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है. हमारी तैयारी जो है पैरेलली साथ साथ इस लेवल पे चलती जाती है कि एग्जाम के पहले हमारा बर्डन कम हो जाएगा, तो हम अपना पूरा फोकस प्रैक्टिस में, टेस्ट में, इन सारी चीजों में लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट ग्रास्पिंग on the concepts and understanding them and learning them. And you get 10th standard में हमें NCERT के above we feel like we should use more reference books, so you don't have to immediately go ahead and invest in buying a book. You get e-books available along with the simple subscription. You get so many practice questions, because boards में what is going to be a game changer for you is the amount of practice that you have. The more PYQs, the more practice sessions, the more tests that you take, the more ready and ripened up you will be for to attempt those board papers. Because बच्चे पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं, same resources, same teachers, same classes, then what is creating the difference in the outcome? It is the practice that you do, and that is what will define the course of your self study. ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए अब आप इतने क्वेश्चंस कहाँ से लाओगे? तो 90,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस तो आपको हमारे साथ ही मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए. प्लस टेस्ट में आप PYQs आपको अनलिमिटेड अवेलेबल हैं. आप अपने टेस्ट अपने हिसाब से कस्टमाइज करके क्रिएट कर सकते हो. अब यहाँ पे एक दूसरी चैलेंज जो आती है वो एक स्केड्यूल, स्ट्रैटेजाइज करना, रूटीन बनाना, एंड टू स्टिक ऑन टू इट, टू हैव समथिंग लाइक अ डे ऑन डे माइलस्टोन की तरह. शॉर्ट टर्म माइलस्टोन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म माइलस्टोन होना चाहिए. उसको फॉलो करने का जो है एक रेगुलर हम कैसे उसे फॉलो अप कर रहे हैं वो भी, उसका भी चेक होना चाहिए. सो दैट ऑल्सो गेट्स अचीव्ड विद द अचीव जर्नी एस्पेक्ट, एंड दैट आई थिंक प्रिपेयर्स यू द बेस्ट एंड गिव्स यू ऑल द ऑप्शंस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी बिग एग्जामिनेशन लाइक योर बोर्ड्स व्हिच हैपेंस एट अ नेशनल लेवल. तो आपको 3 दिन का अनलिमिटेड ट्रायल है. अगर आपको सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में ही नहीं लेना है तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ वरी फॉर यू. एंड प्लस दिस इज द प्राइस पॉइंट एट विच द सब्सक्रिप्शंस आर अवेलेबल. एवरी नाउ एंड देन वी कीप ऑन हैविंग डिस्काउंट्स. जैसे कि अभी आपका 14th जून से लेकर 17th जून तक भी डिस्काउंट है, जहां पे आपने कोड जो है यूज करना है, एंड देन यू विल बी इजीली एबल टू एक्चुअली एक्सेस द डिस्काउंट, एंड दैट विल बी additional 25% off. And that code is DONOR25, DONOR25 on the annual subscription. अगर आपको इस पे डिस्काउंट चाहिए कि आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप उस पर G15 लगा सकते हो, and 15% डिस्काउंट you will have there as well.
Now, just in case if you're wondering that, ma'am, I go ahead with a 6 month, 12 month subscription, बाद में मेरे सब्सक्रिप्शन में 4 महीने बच जाएंगे, मेरा 10 स्टैंडर्ड ओवर हो जाएगा, तो बचे वो 4 महीने बचे हुए सब्सक्रिप्शन से आप अपनी 11th की पढ़ाई शुरू कर सकते हो. You wouldn't have to pay a single penny extra, as I told you, because this is a single subscription for unlimited examinations. Everything that is there on Imbibe वो एक सब्सक्रिप्शन से आप जो है एक्सेस कर सकते हो, which means you, your friend, your siblings, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में हो, आप सबको अलग अलग सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक जना खरीद कर आपस में शेयर कर सकता है. नाउ it comes as the package with Imbibe blends, lab experiments, ये सब साथ में आता है. So that's the beauty of it, and that's why you should simply just close your eyes and go ahead with it, right? So आज हम इंटरवॉर इकोनॉमी भी थोड़ा सा बचा हुआ डिस्कस करेंगे. रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी वी विल गेट इंट्रोडक्शन एंड गेट स्टार्टेड विद. तो ग्रेट डिप्रेशन कैसे था, कैसे मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, ये सारी चीज हम करेंगे डिस्कस. एंड इफ योर टेक्स्ट बुक्स आर नॉट गिविंग यू एनफ इनसाइट्स, सीम्स अ लिटिल मोनोटोनस, अ लिटिल बोरिंग, you just have to scan that and bring the books to life with Imbibe Lens. Just try it once. Trust me, the experience of Imbibe Lens is really amazing and very, very different, very holistic. So we'll start with the 3 questions. You guys are already aware of the drill. 3 सवालों से हम शुरू करेंगे हमारा सेशन. So पहला सवाल ये है that which one of the following was a consequence for the First World War on the global economy? ग्लोबल इकोनॉमी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या असर आता है? बच्चे, वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, कभी भी वॉर जब है वो हमेशा ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पे लीड करता है उस उन सारे नेशंस के लिए जो उसमें इन्वॉल्व हैं. बट नॉट जस्ट फॉर दैट. जैसे हमने रशिया और यूक्रेन के वॉर के साथ देखा है दैट इवन द कंट्रीज विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द वॉर आर सफरिंग विद द फ्यूल प्राइसेस राइजिंग अप, with other sanctions being imposed, in general inflation hitting the market, recession hitting the market. So this is always a consequence of your wars, चाहे वो एक देश में हो या ना हो. और यहाँ पे तो हम वर्ल्ड वॉर की बात करें जहां पूरा कॉन्टिनेंट एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदर countries of the continent were from different continents were also dragged into it. So naturally this was a war which was going to cause like a lot of destruction, which would have taken years for us to revive from. Okay, and we'll move on to the answer in 3, 2, 1, and 0. The correct answer is it transformed the US from an international debtor to an international creditor. उनको ही benefit मिली, बाकी सारे लोगों के लिए it was a huge decline. The reason US was profiting was because they were not a part of the war directly in the beginning to begin with. They became the part of the war later on. ठीक है? Next question. Which of the following best describes the nature of warfare during the First World War? It was limited, it was mostly naval, it was characterized with modern industrial technology, or mainly fought with traditional weapons. And the correct answer would be that it was characterized by the use of modern industrial technology, and that is why a massive destruction was also a result of it.
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर में इनमें से कौन सा कंट्री नहीं था इंक्लूडेड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल powers in the First World War? Germany, Austria, Hungary, Ottoman, or US? And it would be United States. All the other three are part of the Central Powers. ठीक है? Now 2008 में भी हमने बहुत बड़ा रिसेशन देखा. You guys would have been very young in 2008. It was what? It was 16 years before. Were you guys born in 2008? Oh my God, तुम लोग कितने छोटे हो यार. तो 2008 में ऐसा हुआ था. In 2008 the world was hit with one of the worst recessions. ठीक है, there are some great movies also which have been created around how the decline really happened. It again started from US, but it affected the entire world. And क्लास 9th में हमने जब नाजिज्म के टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो उससे हमें ये समझ आया है कि रिसेशन जो है या डिक्लाइन जो है, क्रैश जो है मार्केट का यूएस में होता है, बट इट अफेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड. इनफैक्ट हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा है कि कैसे इंडिया पे भी इसका असर आया था बिकॉज पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी शेक हो गई थी. वैसे ही 2008 में भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था विच इज ऑफ द रीसेंट टाइम्स. अगर हम भूल जाएं वॉर के बारे में और उसकी बात करें तो ना, इट वाज सो बैड दैट इट कुड ओनली बी कंपेयर्ड टू वन टू मच वर्स इकोनॉमिक डिजास्टर फ्रॉम 80 years back. It was that bad, equally bad, okay? क्योंकि क्रैश हो गया मार्केट क्रैश होगा तो वो आज हो कल हो जब भी हो उसका इफेक्ट उतना ही एडवर्स होगा. एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अ लॉट ऑफ माइग्रेशन एंड द होल इंडस्ट्री एवरीवेयर. आईटी की बात कर लो या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज या प्रोडक्शन की बात कर लो, एवरीथिंग वाज ऑन अ डिक्लाइन. एंड इससे पहले हमने कब इसको फेस किया है? इट वाज विद द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. तो अब बात करते हैं कि ये ग्रेट क्राइसिस पहले क्या था. आज के सेशन में वो भी हम करेंगे कवर. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन इन योर यूएस. बट एक्चुअली इस मास प्रोडक्शन से पहले हमारे पास यूएस की रिकवरी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि यूएस कैसे सुपर पावर बना, कैसे रिकवर कर रहा था, उससे पहले थोड़ी सी हमें पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में ध्यान देना होगा और समझना होगा कि यूएस ने जो भी अपनी स्टैंडर्डाइजेशन और फोर्ड ने जो भी अपनी स्टैंडर्डाइजेशन यूज की वो बाकी कंट्रीज के लिए काम कैसे नहीं कर रही थी. तो देखो बच्चे, क्या था कि पोस्ट वॉर रिकवरी वाज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरीवन वाज एट अ लॉस. ऐसा नहीं कि थोड़ा बैलेंस था कि कुछ लोग ठीक थे और कुछ लोग की हालत खराब थी. मेजॉरिटी वर्ल्ड कंट्रीज की हालत खराब ही थी. उनमें सिर्फ वेरी हैंडफुल वर डूइंग समवॉट बेटर एंड वर इन अ प्लेस वेयर दे कुड हैव रिवाइव्ड. नाउ व्हेन ओनली फ्यू ऑफ देम आर इन अ पॉजिटिव स्पेस, फॉर देम टू पुल द अदर्स आउट वाज आल्सो गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट जॉब. तो जहां पे ब्रिटेन हमने देखा तो हमने लास्ट सेशन में ये समझा कि यूएस जो है वो कहीं ना कहीं डेट लेने वाला से क्रेडिट देने वाला बन जाता है, लोन लेने वाले से लोन देने वाले बन जाते हैं. तो पहले लोन देने वाले लोग कौन थे? creditors कौन थे? Who were these countries who had like a lot of money, who were lending money to other countries? It were countries like Britain because they were so rich, colonized everywhere. The saying used to go like the sun never sets on Britain, both more metaphorically and literally. Literally because they were had their colonies right from the easternmost corner to the westernmost corner of the world. So it was like daylight at some point or the other, some place or the other which belonged to Britain. And literally and metaphorically because they were so rich that we would say that oh, the sun never sets on them. They're never in the डार्कनेस, राइट. लेकिन ब्रिटेन जो लीडर था प्री वॉर इकोनॉमी में, उसकी हालत जो है बहुत खराब हो जाती है. काफी प्रोलॉन्ग क्राइसिस से ब्रिटेन ऑल्सो स्टार्ट्स गोइंग आफ्टर द वॉर. तो जहां पे ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो कैसे, मतलब जैसे वॉर शुरू हुआ, वॉर के पहले दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है. 4 years of war takes them to a complete decline. But why were they not able to immediately revive after the war? Forget immediately, 4-5 years में why were they not able to get their position back? ये क्वेश्चन है ना. आज मैं स्ट्रांग हूं, मैं सब कुछ डोमिनेट कर रही हूँ, लेकिन कल मान लो मेरी तबियत 1 महीने के लिए खराब हो जाती है. सो आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ थिंग्स हाउ आई वॉज, और आई गॉट ऑक्यूपाइड विद सम फैमिली commitment, so I'm not able to do the things that I was doing as earlier. लेकिन once I'm done with all of this mess that I got
pulled into, sucked into. उसके बाद when I'm done with this, I can move on back to the same place I used to be, at least if not in the same level, on the same if not on the same level, not in the same aspect, close to it I can get. But Britain was not able to get even close to the place it used to be. Why? The reason why Britain was not able to kind of pull back to the place that used to be even later on was because it was replaced. ठीक है, ब्रिटेन को क्या कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था by a lot of countries and by a lot of there were like a lot of reasons that went behind it. तो जब ब्रिटेन कंप्लीटली प्री ऑक्यूपाई हो चुका था वॉर में, वॉर लड़ने में, वॉर प्रोडक्शन करने में, उसे बाकी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, ट्रेड से कोई मतलब नहीं था. इट हैड जीरो बॉदरेंस अबाउट एनीथिंग एल्स. So while they were busy, as I told you, the demand never completely goes down. Demand क्या थी? Demand during the war eras also, even during the World War I, it kept up. ठीक है, kept up कहने का क्या मतलब है? Maybe other things which are like luxury items and all may not always be very high in demand otherwise, but the necessities of whatever clothing and stuff like that, कि जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, खाने का सामान चाहिए, कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग का सामान चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, वो बेसिक चीजें तो चलती जा रही थी, उसकी रिक्वायरमेंट तो बंद और खत्म नहीं हुई थी. वो जैसा था बिल्ड किया हुआ वो वैसा ही रह गया और वैसे ही चल रहा था. So what we have to understand over here is that while Britain did not have the bandwidth to do whatever it was doing earlier, new countries will find an opportunity to replace it. Because the demand in the world was not going to just come to a halt because a war was going on. लोगों ने खाना खाना, घर में रहना, कपड़े पहनना, ये सब बंद नहीं कर दिया. वो तो जैसा था वो वैसा ही चल रहा है. So the same thing happens. आपका जैसा सिस्टम था वैसा चल रहा था, तो अब नई जगह इंडस्ट्रीज उस वॉर को फिलअप करने के लिए, उस डिमांड को, उस गैप को, उस वॉइड को डेवलप करने लग जाएंगी, क्योंकि उनको बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है यहाँ पे ब्रिटेन को रिप्लेस करने के लिए, अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए. तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया, जापान, और आपको लगेगा इंडिया तो कोलोनाइज थी, फिर कैसे? तो नेशनलिज्म इन इंडिया में अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर वन जहां पे ब्रिटेन हमारे कोलोनियल पावर्स के लिए अच्छा नहीं था, बट एज अ कोलोनाइज्ड पावर हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोडक्शन वॉर रिलेटेड भी किए और अदरवाइज भी किए, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं आ रहा था. एंड ब्रिटेन फॉर दोस 4 years डिड नॉट इवन केयर दैट ओ यू वर इन कंपटीशन विद देम, यू आर प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स और एनीथिंग, बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग. सो दे हैड नो free time to look into that what other things you're doing or put restrictions on you. तो ब्रिटेन जब वॉर खत्म करके वापस आता है, व्हेन इट ट्राइज टू रिकैप्चर इट्स पोजीशन बैक इनटू द मार्केट, ठीक है, इसे पहले से मार्केट अब भरा हुआ दिखता है, यानी कि इट हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड आउट ऑफ द मार्केट. द डोमिनेंस दैट इट हैड अर्लियर, इट कुड नेवर गो बैक टू द सेम. अब जैसे इंडियन मार्केट में हमने देखा, उन्होंने कितने समझदारी से इंडिया के सामान को ही निकाल दिया था बाहर और अपना मार्केट बना लिया था, या दूसरे कंट्रीज में भी. अब वो उन्हें वापस रिप्लेस कर दिया गया था, और उस जगह पे वापस आना was going to be a very difficult job for them to recapture its earlier position. And इंडिया से compete कर पाना मुश्किल हो रहा था, प्लस हमारे यहाँ सारे मूवमेंट्स, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे. तो ये देखो यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया आपको काम में आएगा. Why could they not replace? So replacing हटा देते, recapturing लिखते हैं, ठीक है. So recapturing for Britain was very very difficult. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्यों डिफिकल्ट हो गया? इंडिया में एक तो इसलिए डिफिकल्ट हो गया बिकॉज इंडियन प्रोड्यूसर्स आ गए थे, उन्होंने मार्केट में उनको रिप्लेस कर दिया था. अब और दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन हो गया था स्वदेशी मूवमेंट्स, विच वॉज अराउंड कि भैया हमें जो सामान यूज करना है, हमें फॉरेन गुड्स को क्या कर देना है, बॉयकॉट कर देना है. बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स स्पेशली, जो है अपने कंट्री का यूज करो ताकि हमारे लोगों को प्रॉफिट हो. तो अब उनके लिए इंडिया में ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो इंडियन मार्केट यहां पे चला गया, ठीक है. लेकिन अगर बाकी जगह की बात करें इंटरनेशनली, तो जापान ने बाकी जगह पे अपनी
पकड़ है वो फैला दी थी, तो जापान से इंटरनेशनली अब compete करना उसके उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट हैड कंप्लीटली रिप्लेस्ड एंड इट वाज नॉट जस्ट जापान, कहीं ना कहीं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऐसे बाकी कंट्रीज भी जो थोड़ी जो ग्रो कर चुकी थी, पावरफुल बन चुकी थी, उन्होंने भी उनको बहुत ज्यादा रिप्लेस कर दिया था। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि ब्रिटेन और ज्यादा अग्रेसिवली क्यों नहीं काम करने लग गया फिर इनको वापस हटाने के लिए। थोड़ा अग्रेसिवली करता तो हो सकता था। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज बच्चे, ब्रिटेन वॉज इन अ लॉट ऑफ डेट। उन्होंने जितने पैसे हो सकते थे यूएस से पहले ही बहुत सारे पैसे दे रखे थे। तो अब इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज्यादा डेट था बाय द एंड ऑफ, ठीक है। तो ब्रिटेन अंडर ह्यूज डेट्स यूएस से, ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट रेट भी चार्ज होने वाला है। तो अगर ये और पैसे, अब इनको देखो कहीं पे भी अग्रेसिवली अगर आपको रिप्लेस करना है लोगों को, तो आपको बहुत ज्यादा नया मैन्युफैक्चरिंग, नया सिस्टम, बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन, ये सब करना होगा, विच विल रिक्वायर लॉट ऑफ कैपिटल एंड दे डू नॉट हैव द कैपिटल, द कैपिटल इज डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ द वॉर, दे कैन नॉट बोरो मोर कैपिटल बिकॉज दे आर ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ डेट एंड विथ ऑल ऑफ दैट डेट का प्रेशर, दिस प्रेशर टू पे इट बैक, दिस प्रेशर ऑफ इंटरेस्ट, तो उनके पास पीछे जाने के लिए जगह बची ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इस वॉर इकोनॉमी की वजह से बहुत बड़ा एक इंक्रीज, एक वॉइड आया था डिमांड, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में, जब वॉर एकदम सॉरी तो वॉर बूम जब एंड होता है, यानी कि वॉर की वजह से जो वॉर मटेरियल्स में रिक्वायरमेंट आई थी कि सोल्जर्स के लिए, देखो वॉर के टाइम पे ना एक नई तरीके की डिमांड क्रिएट हो गई थी और वो भी काफी बड़ी थी। तो वो वॉर के खत्म होने के साथ साथ वो डिमांड भी खत्म पे आने लग जाएगी, उन सारी चीजों का प्रोडक्शन खत्म होने लग जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट विच वॉज इन द आर्मी, इन द इंडस्ट्रीज विच वर प्रोवाइडिंग वॉर इक्विपमेंट्स, विच वर प्रोड्यूसिंग वॉर रिक्वायरमेंट्स, वो सब अब डिक्लाइन पे आ जाएगा। और यही ये प्रॉब्लम है कि फिर से कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, प्रॉब्लम्स में फंसेंगे, और अब बाकी चीजें तो काम नहीं कर रही हैं वॉर के बाद, तो उनके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं होगा कि चलो ये वॉर का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया तो कहीं और चले जाते हैं, बाकी जो रेगुलर काम चल रहा था वो उल्टा और बंद हो जाता है, ठीक है। तो सेम टाइम पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो वॉर एक्सपेंडिचर्स, नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने पढ़ा है कि बहुत ज्यादा वॉर एक्सपेंडिचर्स हो रहा था, ठीक है। अब उनको हटा करके, वॉर में जो इतने पैसे लग रहे थे उनको हटा करके वो धीरे धीरे उन सारी चीजों में रेवेन्यू लगाती है जो पीस टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, खाने में, बेसिक नेसेसिटीज, बाकी चीजों में, बाकी डेवलपमेंट्स में। लेकिन इन सारे चेंजेस की वजह से, इन सारे डेवलपमेंट्स की वजह से हम क्या देखते हैं, तो आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर बता दूं। बिफोर वॉर लेट्स से 10,000 पीपल वर एम्प्लॉयड इनटू समथिंग एल्स। ड्यूरिंग द वॉर सम 8,000 ऑफ, या फिर मान लो 10,000 लोग अनएम्प्लॉयड थे और 10,000 लोग एम्प्लॉयड थे। 10,000 लोग जिस चीज में एम्प्लॉयड थे उनमें से बहुत कम चीजें वॉर के टाइम पे चलती रही, तो बाकी लोग जो निकले वो वॉर रिलेटेड प्रोडक्शन में घुस गए, प्लस अनएम्प्लॉयड लोगों में से भी कई लोग वॉर रिलेटेड प्रोडक्शन में घुस गए। तो काफी लोगों के पास जॉब है वॉर की वजह से, ड्यूरिंग वॉर चल जाते हैं। आफ्टर वॉर क्या हो रहा है, आफ्टर वॉर जो वॉर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए काम शुरू हुआ था वो बंद हो गया, कई सारे बाकी काम एडिशनली बंद हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास फंड्स, पैसे, ये सब नहीं है। तो अब पहले से भी ज्यादा लोग और अनएम्प्लॉयड और ज्यादा हेल्पलेस और ज्यादा बेचारे बनकर घूमने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत जॉब लॉसेस होती है। 1921 में अगर आप देखोगे तो, अगर ब्रिटिशर वर्कर्स की बात करें, ब्रिटेन के वर्कर्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि स्पेसिफिकली कम से कम मतलब हर 5 में से एक बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड ही घूम रहा था, यानी कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन वाज अनएम्प्लॉयड। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस में नेट जब 20% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, और ये उससे भी बड़ी होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट जब 20% पॉपुलेशन आपकी अनएम्प्लॉयड है, ये बहुत बड़ा नंबर है, और उसमें से कई तो अनफिट है काम कर पाने के लिए, वो अलग प्रॉब्लम है। इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ एंशियसनेस, हेल्पलेसनेस, अनसर्टेनिटी in the people, and this is how the world, and especially for Britishers, Britain and other countries which were directly involved in the war, this is how it looked like, ठीक है। अब कई सारे कंट्रीज जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज थी, जैसे रशिया हो जाती है, ठीक है, जो पूरा पूरा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी, जो वीट प्रोड्यूसर्स थी, वो वॉर के पहले बहुत बड़े सप्लायर्स थे। तो रशियन रिवॉल्यूशन में क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि 1914 तक
इनफैक्ट 1917 तक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर फार्मर्स, 85% फार्मर्स थे रशिया में, 50-60% जर्मनी में, फ्रांस में, यहाँ भी 50-50% आपके फार्मर्स थे। तो ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूरोप के लोग, जो वीट, राइस, ऐसे क्रॉप्स, इन सारी चीजों का बहुत हैवी प्रोडक्शन करते थे और पूरी दुनिया में सप्लाई करते थे। लेकिन जब वॉर शुरू हुआ तो ये सारे लोग वॉर में फंस गए, ये सारे लोग वॉर की चीजों को सप्लाई करने लग गए वर्ल्ड मार्केट में। तो इन्होंने जगह खाली कर दी फूड प्रोडक्शन और ये बेसिक प्रोडक्शन गुड्स की। किसी को तो रिप्लेस करना था क्योंकि इसकी डिमांड कभी भी घटी नहीं। तो ये डिस्टर्ब ना हो ड्यूरिंग द वॉर ऑल्सो इन सबकी डिमांड, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुआ। तो आपके कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अपनी एक्सपेंशन बहुत ही ड्रास्टिकली और ड्रामेटिकली की और इन सारे मार्केट को उन 4 इयर्स में कैप्चर कर लिया। अब क्या प्रॉब्लम होगी, वॉर खत्म होने के बाद ये जो बाकी कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप वाले और बाकी जो एकदम से घुसे हुए थे वॉर में, वो जब बाहर निकलते हैं अब वो भी वापस अपने पुराने पोजीशन को रिकैप्चर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी विल सी दैट यूरोप रिवाइव कर रहा है बट देयर विल बी अ ग्लट इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट वाज हैपनिंग। आपके साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एकदम से। पहले ही कुछ बड़े कंट्रीज ने अब मार्केट रिकैप्चर कर लिया जो वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे, उनकी इकोनॉमी भी बेटर थी। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन करें उनके साथ, आपको भी लगता है कोई बात नहीं हम साथ साथ प्रोडक्शन करते जाते हैं, तो हर एक चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जितनी डिमांड नहीं रहेगी। डिमांड नहीं रहेगी, सप्लाई बढ़ गया बिल्कुल, यानी कि बहुत सारा प्रोडक्शन हो गया, तो नेचुरली प्राइसेस डिक्लाइन पे ले जाती हैं। तो आप देखोगे कि ग्रेन्स के, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस घट जाते हैं। फूड ग्रेन्स के प्राइसेस घटेंगे तो जो फार्मर्स हैं, और ये फार्मर्स हर जगह सफर करेंगे, इंडिया के ले लो, ब्रिटेन के ले लो, सबके फार्मर्स जो है उनकी इनकम डिक्लाइन हो जाएगी और फार्मर्स फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर होने लगेंगे और बहुत ज्यादा सफर करने लगेंगे। ठीक है, तो यूएस क्या कर रहा है मार्केट रिवाइव करने के लिए, क्योंकि यूएस ने पहले 2 साल तो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वहां पे उन्होंने अपना ग्रेन प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन कर करके उस मार्केट को कैप्चर कर लिया जो कि यूरोपियन पावर्स का था। तो चलो दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, बट दे ऑल्सो वर पार्टिसिपेटिंग, दे ऑल्सो डिड लूज अ गुड चंक ऑफ मनी इन द वॉर। सो हाउ डिड दे रिकवर? Recovery for them was easier because the loss was not as big as that of these people, right? Of the European powers. But what they did after war was definitely boosted their economy to another level. एक छोटा सा पीरियड, एक फेज ऐसा रहा जहां पे वो बहुत ट्रबल्ड थे वॉर के बाद, लेकिन 1920 से उन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया कि दे वर गोइंग टू बी बैक ऑन देयर फीट। इनमें से एक इंपॉर्टेंट फीचर हमारा मास प्रोडक्शन का है। तो उन्होंने जैसे क्या करना शुरू किया, मास प्रोडक्शन शुरू किया, जिससे उन दे वर गोइंग टू बी बैक ऑन देयर फीट, दे वर गोइंग टू बी बैक अप एंड रनिंग एंड रिवाइविंग देयर इकोनॉमी इमीडिएटली। सो 19th सेंचुरी में बिगिनिंग में उतना ज्यादा प्रोडक्शन मास लेवल पे यूएस नहीं कर रहा था। मास प्रोडक्शन इज व्हाट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टैंड्स फॉर। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेफिनेटली हैड एंटर्ड योर US economy and industrialization, but not at the level at which it will get post the war economy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, 1920s में एक नया फीचर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूएस के आइडेंटिफाई करोगे, जिसको उन्होंने जिसको उन्होंने बिल्कुल मास्टर कर लिया था, एंड इट वाज ब्रॉट इन बाय द वेल नोन पायनियर, अ वेल नोन एक्सपर्ट, हेनरी फोर्ड। ये किसने इंट्रोड्यूस किया उनके लिए? हेनरी फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हेनरी फोर्ड इज द पर्सन हु स्टार्टेड द कंपनी ऑफ फोर्ड। तो ये जो फोर्ड मोटर्स भी हम देखते हैं बच्चे, ये हेनरी फोर्ड की स्टार्ट की हुई कंपनी है। तो इन्होंने एक नया सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू किया जिसको कहते हैं असेंबली लाइन। So what was this new system that he started? And you have to remember assembly line is very very important. Assembly line जिससे इंक्रीज हो जाती है आउटपुट पर वर्कर, हर एक वर्कर की आउटपुट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और काम की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल अनदर लेवल पे, which was something that was not seen before, that was not expected, but it does achieve that level. Now what is this assembly line? As it sounds, it is going to be exactly like that. ठीक है, तो शिकागो में पहले स्लॉटर हाउसेस हुआ करते थे, वहां पे जो सिस्टम आपका रहता था एग्जैक्टली वो इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। अब देखो, पहले वहां से इंस्पिरेशन ली थी। आप कई जगह देखोगे ये सिस्टम रहता है, तो शिकागो के स्लॉटर हाउस से क्या इंस्पिरेशन ली? तो वहां पे जब एनिमल्स को स्लॉटर करते थे, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान ने स्लॉटर किया और वो अब उसके, अब जैसे अगर
आपने देखा हो, अगर इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, इफ नॉट देन मे बी नॉट, बट बेसिकली क्या होता है बच्चे, जब आप किसी भी छोटे एनिमल को या बड़े एनिमल को स्लॉटर करो, इट डजंट मैटर, इट्स अ प्रोसेस हाउ टू कट देम इन अ सर्टेन पीसेस which can be consumed to eat. There has to be certain cuts which has to be made at a certain place for the pieces and different parts to be usable, and it has to be in a certain shape, it has to be in a certain size. So it's an art in its own manner. ठीक है, तो यहाँ पे स्लॉटर हाउस में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था कि एक ही इंसान, जो कि आप इंडिया में भी देखोगे, इन जनरल देखोगे कि लोग क्या करते हैं, एक एक खुद ही एक इंसान ने काटा एक जानवर को और उसके अलग अलग पार्ट्स को धीरे धीरे वो स्लॉट कर रहा है. शिकागो में क्या होता था, एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल इन यूएस दे कंज्यूम बिग एनिमल्स इन लाइफ स्टॉक्स, जैसे कि काउज एंड बफेलोज एंड पिग्स, दे आर ऑल्सो कंज्यूम्ड. सो slaughtering them is a difficult task and more time taking task than just slaughtering, let's say, a small chicken or a small turkey. ठीक है, तो वहां पे अगर आप मान लो एक बफेलो को स्लॉटर कर रहे हो, तो इट्स अ ह्यूज एनिमल. फॉर वन पर्सन इट्स लाइक अ वेरी बिग टास्क. सो व्हाट दे वुड डू इज दे वुड डू अ डिविजन. एक बंदे का काम ये है कि वो हर आने वाले एनिमल के एक सर्टेन पार्ट, बॉडी पार्ट वन को स्लॉट करेगा और उसको लेकर के छोटे पीसेस में कट करेगा. रेस्ट ऑफ द बॉडी विल मूव ऑन द कन्वेयर बेल्ट. जैसे कि एयरपोर्ट पे बेल्ट्स होते हैं, वैसे बेल्ट्स होते थे, उस बेल्ट पे वो आगे मूव कर जाएगा. दूसरा बंदा अपना बॉडी पार्ट 2 का सेक्शन निकालेगा, उसको छोटे पीसेस में कर लेगा. अब ऐसे क्या होता है, आप फास्ट हो जाते हो. जैसे कि आप आज अनियन चॉप करोगे, ठीक है, तो आप उतना फास्ट नहीं कर पाओगे. आप उसको लगातार 10 दिन तक करो, 20 दिन तक करो, 30 दिन तक करो. सो इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस चॉपिंग डे ऑन डे, the more vegetable that you chop more number of times, your hands and your muscle memory will develop in such a way कि वो आप उसको ऑटोमेटिकली ज्यादा फास्ट चॉप कर पाओगे देन दी अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, चॉपिंग अ क्यूक्यूम्बर इज मच इजियर देन चॉपिंग एन अनियन. लेकिन अगर मैं आपको रोज 2 अनियन चॉप करने दे दूं और आप कभी मैं कैरेट कभी क्यूक्यूम्बर ऐसे चॉप करा रही हूँ, तो आप बाकी चीजें कम करोगे, बट आपको एक सर्टेन ग्रिप आ जाएगा, एक मेमोरी आपकी डेवलप हो जाएगी, जहां पे अनियन में चॉप करने का स्पीड बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे वो बुचर्स यही करते थे कि एक सर्टेन पोर्शन ही लेते थे, बाकी पोर्शन ऑफ एनिमल वो पास ऑन कर देते थे. सबके अपने अपने सेक्शंस डिवाइडेड थे, वो अपने अपने सेक्शंस को चॉप करते थे. उन्हें एग्जैक्टली पता था कहाँ पे क्या करना है. तो जब आप कुछ ऐसे वीडियोस देखते हो ना, जहाँ पे शेफ्स होते हैं, वो फिश को बड़े आराम से कट लगा लेते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कहाँ पे फिन्स है, कहाँ पे टेल है, कहाँ पे वो मिड बोन है, उस बोन में कहाँ से हटाना है. हाउ आर दे एबल टू डू इट सो फास्ट? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग द मसल मेमोरी. दे हैव डन इट सो मेनी टाइम्स दैट they can even close their eyes and do it. And a new person with और precision, वो गलत भी कर दे शायद, लेकिन वो जितना टाइम लेगा उसका 1/10 1/20th टाइम ये इंसान लेगा जो बार बार करता है. तो ये सिस्टम से हमें क्या समझ आया, ये सिस्टम इन्होंने हेनरी फोर्ड ने देखी और ये सेम सिस्टम अपने कंपनी में डिट्रॉइट में अप्लाई कर दिया. इन्होंने इसका नाम रखा असेंबली लाइन मेथड. इसमें क्या था, सबका काम डिफाइंड है, ठीक है, everyone has their work defined. तो I'll tell you at a very basic level of what it means. पहले बच्चे मशीन इतना फटफट सारा असेंबलिंग नहीं करती थी. पहले अलग अलग पार्ट्स आते थे और ह्यूमंस उसको असेंबल करते थे. अब आप एक ही इंसान को 10 डिफरेंट तरीके के काम बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा. मान लो मैं फैक्ट्री चला रही हूँ, एक जगह मेरा केक बनकर निकल रहा है. अब उसको केक को पहले एक प्लास्टिक के बैग में पैक करना है, उसके बाद उसके ऊपर एक स्टैंप लगना है, एक वो लगना है, क्या बोलते हैं यार, एक स्टिकर लगना है, ठीक है, वो स्टिकर पे मतलब ब्रांड का स्टिकर होगा वो लगेगा. फिर उससे वो एक कार्टन में जाएगा, उस कार्टन को फिर आपको टेप करना है, फिर उस टेप पर वापस स्टिकर लगाना है. तो ये 4 स्टेप्स हो गए, 4-5 स्टेप्स हो गए. अब ये मुझे करना है, तो मैं अगर पहले जा रही हूँ, केक को पैक करूंगी पैकेट में, फिर स्टिकर लगाऊंगी, फिर कार्टन में डालूंगी, फिर स्टिकर लगाऊंगी, इसमें एरर बढ़ने के चांसेस होते हैं. प्लस आई एम डूइंग 4 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. तो मुझे टाइम लग रहा है एक पार्ट 1 से पार्ट 2 में शिफ्ट होने में, पार्ट 2 से पार्ट 3 में शिफ्ट होने में. इन्होंने क्या किया, सबके स्टेशंस डिफाइन कर दिए. एक बंदा खड़ा है, उसका काम पूरे दिन में जितने केक्स बन रहे हैं उसको सिर्फ उस पैकेट में पैक करना है. अब वो धीरे धीरे इतनी बार उस काम को कर लेगा कि वो इतना फास्ट हो जाएगा कि आंखें बंद करके भी कर सकता है. तो ऐसे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है जहां पे हम देखते हैं ना कि पीपल आर सिटिंग, दे आर मे बी चैटिंग, बट उनके हाथ चल रहे हैं, वो अपना कुछ पैक करते जा रहे, मशीन की स्पीड से कर रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज दे हैव गॉट ट्रेन्ड सो मच इन दैट.
तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन पर्सन लर्न डिफरेंट स्किल्स, एक इंसान को एक ही स्किल सिखाओ और उसी स्किल पे काम करवाते जाओ। एवरी डे दैट पर्सन विल कीप गेटिंग बेटर एट इट। ठीक है, ये होती है असेंबली लाइन की पूरी सिस्टम, जहां पे आपका क्या होता है, ये सिस्टम फास्ट होता है, चीपर होता है और मच एफिशिएंट होता है। अब कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो एक इंसान टायर लगाएगा और सिर्फ आगे के टायर्स को लगाएगा जो उसके साइड पे, वो साइड चेंज करके नहीं जाएगा। तो दो तरफ इंसान बैठे हैं, इधर से एक इंसान इधर लगा रहा है, एक इंसान इधर लगा रहा है, दोनों अपना लगाए जा रहे हैं। अब वो जितने कार सारे उसमें टायर लगा रहे हैं, तो एक दिन में ऐसे जो एक कार असेंबल होती है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अब वो मल्टीपल कार्स असेंबल होने लग गई। ठीक है, तो एक ही काम को रिपीटेडली आप मैकेनिकली कॉन्टिन्यूसली कर रहे थे, जहां पे आप अपने कार के एक पर्टिकुलर पार्ट को फिक्स करना आपका काम है और वो बेल्ट पे चलता जाएगा, आपके पास आएगा, आप अपने सेक्शन को फिक्स करो और वो फिर आगे चला जाएगा। इससे आउटपुट पर वर्कर बहुत बढ़ गई क्योंकि आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो एक दिन में 10 लोग मिलके 10 अलग काम कर रहे हैं, बट रिजल्ट क्या हो रहा है, एक पूरा सामान रेडी हो जा रहा है। पहले क्या था, एक इंसान ही सारा काम कर रहा होता था, तो उसे अकेले उस कार को रेडी करने में 3 दिन 4 दिन लगते थे। अब इससे क्या हो जा रहा है, अब कोई डिले नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई ब्रेक नहीं ले रहा है। ठीक है, चिट चैट कर भी रहे हैं तो आप इतना ट्रेंड होके अपना काम करते करते चिट चैट कर रहे हो और ये सब कुछ फास्ट 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 मूव करता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये देखा गया कि हेनरी फोर्ड की गाड़ियां उस असेंबली लाइन की वजह से 3 मिनट में रेडी हो जा रही थी, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार मास प्रोड्यूस्ड कार में इस लेवल का प्रोडक्शन, स्पीड का प्रोडक्शन देखा गया था। ठीक है, सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यूज्ड टू एक्चुअली हैपन अर्लियर। तो ये पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार इस तरीके से बन जाता है फोर्ड का। सो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम। अब जैसे मैं आपको ही कह दूं, ठीक है, आप किचन में मान लो हमें 10-15 लोगों का खाना बनाना है, मैं और एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। अब वहां पे मुझे ही अगर मान लो मैंने कहा मैं बिरयानी बनाऊंगी, ठीक है, तो मैं ही वेजिटेबल चॉप कर रही हूँ, मैं ही राइस वॉश कर रही हूँ, तो मेरे को दिमाग में चल भी रहा है कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम फोकस्ड ऑन अदर थिंग, आई कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स गोइंग टू बी वेरी टैक्सिंग। वहीं पे आप क्या कर दो, एक इंसान को सारी सब्जियां लेकर के बैठा दो, वो फटफट अपनी सब्जी चॉप करते जा रहा है, दूसरे इंसान को देता जा रहा है। दूसरा इंसान का काम क्या है, वो सारे यूटेंसिल्स को अरेंज करता जा रहा है। ऐसे सबके डिफाइंड टास्क होते हैं और वो सिर्फ वही करते जाएंगे, तो ये बहुत स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस और आप आराम से जो अदरवाइज 6 घंटे में करते वो आप 3 घंटे में कर पाओगे। तो ऑर्गेनाइज कर देना, लोगों की मेमोरी उसके अराउंड डेवलप कर देना, दिस इज व्हाट द होल सिस्टम वाज। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा था कि शुरू में वर्कर्स के ऊपर बहुत प्रेशर आया, बिकॉज वो ब्रेक नहीं ले सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, दे हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन अभी सामान आ रहा है इसको फिक्स करो, अभी सामान आ रहा है इसको फिक्स करो, और बहुत फास्ट पेस काम था, तो दे वर नॉट एबल टू कीप अप बिकॉज इट टेक्स यू टाइम टू गेट ट्रेन्ड टू दैट लेवल। जो लोग वो काम 3 महीने से कर रहे होंगे वो स्पीड पे आ गए होंगे, बट कोई नया बंदा आएगा तो वो कंट्रोल में नहीं कर पाएगा। तो वैसे जब नए लोगों ने नया काम शुरू किया होगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पा रहा था उनसे। तो कई सारे लोगों ने बोला कि भैया ये स्पीड से तो हम काम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, दे स्टार्टेड क्विटिंग। ठीक है, तो फोर्ड को समझ आई कि इनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक देम अग्री कि अरे भैया तुम्हारा ही प्रॉफिट है, तुम्हारा काम इनफैक्ट कम हुआ है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ये बस फास्ट हो रहा है, काम ज्यादा होगा बट लोड और प्रेशर जो तुम पे अदरवाइज रहता था वो रिड्यूस कर गया है, तो व्हाई डोंट यू लेट मी पे यू एक्स्ट्रा वेज। सो ही डबल्ड द वेज। ठीक है, पहले अगर मान लो $2 देते थे तो अब उन्होंने $4 कर दिया, तो ऐसे करके वेजेस बढ़ा दिए गए काफी पर डे का। 1914 में ही वाज पेइंग लाइक $5 पर डे। $5 पर डे बच्चे आज के हिसाब से भी देखो, अभी कुछ 85 रुपीज 80 रुपीज मान के चलती हूं मैं, $5 मीन्स 400 रुपीज पर डे। इंडिया में भी 400 रुपए आज भी, 1914 की बात है, आज भी इतने पैसे एक दिन के काम के नहीं मिलते हैं। अब इनफैक्ट जो गवर्नमेंट मैंडेटेड है वो भी आई थिंक 300 रुपीज है जो किसी वर्कर को एक दिन का मिलना चाहिए। आपको 400 रुपए दिन के मिल रहे हैं, अगर आपने 20 दिन भी काम किया तो आप कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए कमा पाओगे आई गेस। एंड 1914 में दैट यूज्ड टू बी अ गुड अमाउंट फॉर अ वर्कर्स लेवल। ठीक है, एंड उसके बाद उन्होंने ये भी चीज कर दी कि ट्रेड यूनियन मेरे यहाँ नहीं बनेगा, कोई ट्रेड यूनियन कोई एसोसिएशन नहीं बनेगा। डेट्रॉइट वाज द नेम ऑफ द प्लेस
वेयर दिस कंपनी वाज ओपन्ड, ठीक है। और जैसे ये जो इंस्पिरेशन ली थी इन्होंने शिकागो के स्लॉटर हाउस से ली थी, ठीक है। तो आपके ये जो दो नाम आते हैं, डेट्रॉयट और शिकागो, ये आपके जगहों के नाम हैं यूएस के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाई वेजेस है तो लोगों को मोटिवेशन आ गया कि ठीक है यार चलो काम करते हैं। ही बैंड द ट्रेड यूनियंस एंड इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू रिकवर द हाई वेजेस। कोई वो जितना पैसा दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, दिन में, आपको लगेगा ये तो लॉस का सौदा है, नहीं, वो जितने कार्स बना ले रहे थे वो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। इतना स्पीड अप हो गया था पूरा प्रोसेस लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देने की वजह से, कि लोग जो है एक्स्ट्रा पैसे के चलते और ज्यादा फोर्स कर रहे थे अपने आप को हार्ड वर्क करने का, फास्ट वर्क करने का। और इस तरीके से उनकी प्रोडक्शन जो पहले थी उससे डबल हो गई। तो आप समझ रहे हो, अगर डबल हो गई प्रोडक्शन तो वेजेस भी डबल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन की तरह डिस्क्राइब किया जाता है बाय हेनरी फोर्ड। ही सेज दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आई एम मेकिंग नाउ इज नोवेयर क्लोज टू व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर। तो अगर मुझे उसके लिए उनको सिर्फ वेजेस डबल करना होगा तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ $2.5 का $5 बना के, $2.5 को $5 कन्वर्ट करने से उनकी प्रॉफिट तो हजारों डॉलर्स में बढ़ गई। तो आप समझ रहे हो ना कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो गया उनके लिए। तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस था यूएस का, जो फोर्ड से इंस्पायर्ड था, ये धीरे धीरे सारे लोगों ने देखा कि भाई ये फोर्ड कैसे कर पा रहे। सो ऑल द अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो अराउंड इन द 1920s इट स्टार्टेड फॉलोइंग द सेम प्रोसेस ऑफ मास प्रोडक्शन, कंप्लीटली स्टार्टेड फॉलोइंग व्हाट दे वर डूइंग, जहां पे उन्होंने अपना, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन का कॉस्ट घट गया, ठीक है। और इंजीनियर्ड गुड्स जो अलग अलग जगह पे होते थे वो घट गया। वेजेस उन्होंने बढ़ा दिए तो वर्कर्स भी अब थोड़े ज्यादा कंसिडरेट और ज्यादा मोटिवेटेड हो गए, और उन्होंने भी अपना काम डबल कर दिया, और असेंबली लाइन की वजह से प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज कर गई थी। तो जैसे अगर हम कार कॉस्ट की बात करते हैं, अगर हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, तो पहले बच्चे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 2 मिलियन था 1919 में, तो वो 1929 में 5 मिलियन हो गया, यानी कि डबल से भी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब जब प्रोडक्शन इतनी हो रही है, चाहे, और ये सेम चीज हर चीज में हुई, कार्स के साथ साथ रेफ्रिजरेटर्स, मशीन्स, हर एक चीज में ये सेम प्रोसेस चलने लग गया, ठीक है। एंड उसके साथ इन्होंने लोगों को, बाकी इन लोगों ने और नया सिस्टम क्या अपनाया, हाई वेजेस से लोगों को जो मोटिवेट करे थे वो तो कर ही रहे थे। अब इतना सारा जो मास प्रोडक्शन हो रहा है उसको खरीदने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो कंज्यूमर्स पे भी इन्होंने कुछ तरीका अपनाया था, वो हम देखते हैं आगे क्या। आप मुझे इसका आंसर कर दो, दैट द कार्स प्रोड्यूस्ड ऑन असेंबली लाइन ओ देयर ओरिजिन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फोक्सवैगन, शेवरले, फोर्ड और एम्बेसडर। Okay, and the correct answer would be Ford, right? Henry Ford started this. अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये, इतना सारा सामान प्रोड्यूस तो हो रहा है, खरीदने वाले अगर लोग नहीं होंगे, देखो बेटा मास प्रोडक्शन तभी हिट हो सकता है जब मास कंजम्पशन हो। तो अगर आप लोगों के बीच में खरीदने का उत्साह नहीं बढ़ा रहे हो, आपने प्रोड्यूस कर दिया, वेजेस अच्छे दे दिए, वो सब ठीक है, पर इतना सारा सामान खरीद कौन रहा है, हो सकता है लोग मोटिवेटेड ना हो खरीदने के लिए। तो इन्होंने इस चीज में भी बिल्कुल ऐसा स्प्लर्ज और स्पर्ट ला करके प्रूव कर दिया कि एकदम से एक फोर्थ स्ट्रीम ऑफ परचेजिंग शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा कि अब आप जब कुछ महंगा सामान खरीदते हो, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, ये थोड़ी महंगी अप्लायंसेस है ना, सस्ती नहीं आती हैं, आपको एक बार में 30,000 20,000 ऐसा पे करना पड़ता है। इन्होंने कहा आप एक बार में हमें पे मत करो, यू टेक टाइम, यू पे मी विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, यू पे मी विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, हर हफ्ते आकर के मुझे 5,000 1,000 10,000 ऐसे देकर जाओ। तो एक साथ आपके पास अगर 40,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, तो 2 महीने का टाइम ले लो, हर 15 डेज पे आप मुझे 4,000 पे कर दो। सो एवरी 15 डेज यूर कंसोलिडेटिंग द मनी, पेइंग 4,000, देन 4,000, देन 4,000। तो ऐसे 5 हफ्ते, मतलब 2.5 मंथ्स के दौरान में आपने 20,000 का सामान आराम से खरीद लिया। जब ऐसा होने लग गया तो लोगों ने और ज्यादा चीजें ऑर्डर करनी शुरू कर दी। अब चीजों के साथ साथ आप इन चीजों को रखोगे कहाँ, छोटा घर है, अपना घर नहीं है, तो और दिक्कत होता है।
तो यहाँ पे एक और एडवांटेज क्या मिल जाता है, लोगों के अंदर घर को कंस्ट्रक्ट करना, घर को खरीदना, इसकी भी बहुत ज्यादा ओनरशिप आ गई थी और एंथुजियाज्म आ गया था, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक नया सिस्टम शुरू हो गया था हाउस लोन्स का बाय द बैंक्स। बैंक्स ने भर भर के लोन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो पीपल वर वेरी मच इनकरेज दैट इंस्टेड ऑफ रेंटिंग अ हाउस, लीजिंग अ हाउस, दे वर बाइंग अ हाउस। तो अब जब आप घर खरीद रहे हो तो आपको सारा सामान सेट करना है, तो इट यूज टू गो हैंड इन हैंड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउसिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है 1920s में। यूएस में एकदम से एक बूम आता है कंज्यूमरिज्म में घर खरीदने के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, a lot of loan was provided to the people in US, ठीक है। तो अब इसकी वजह से एक आप जब जनरल असेसमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है हाउसिंग में, हाउस होल्ड गुड्स में जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ी है, कंजम्पशन बढ़ा है, तो फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, घर बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बैंक्स में लोन्स प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ फिर वापस कंजम्पशन बढ़ाएगा, फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। सो इट वाज गोइंग आउट इन अ साइकिल। The more people were consuming, the more production was being done. More production was being done, more employment was happening. More employment was happening, more income was being generated. And then when more income was being generated, more consumption was happening. Again, then because of more consumption, more production will happening. It was going out in a cyclic way. मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए, मैंने ज्यादा सामान खरीदना शुरू किया, मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे तो तुमने ज्यादा सामान बनाना शुरू कर दिया, तुम्हें सामान बनाने के लिए लोग चाहिए तो तुमने एम्प्लॉयमेंट ज्यादा की, एम्प्लॉयमेंट जिनकी की उनको पैसे मिल रहे हैं, अब उनके पास इनकम का सोर्स अच्छा बड़ा हो गया, तो वो लोग भी अब ज्यादा सामान खरीदेंगे, है ना, अब वो नए कंज्यूमर्स बनेंगे, और ऐसे साइकिल में सब कुछ एम्प्लॉयमेंट का, इनकम का, डिमांड के राइज का, प्रोडक्शन का चलता जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1923 में हम देखेंगे कि इस पूरे साइकिल में जो इंक्रीज आ रही थी वो धीरे धीरे बाहर भी जाने लग जाती है। यूएस ने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अपने पैसे बाकी बाकी सारे देशों को भी। पहले उन्होंने वैसे ही लोन दे रखा था 1923 में, जब इंटरनली उनका मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, उन्होंने बोला हम और लोन प्रोवाइड करेंगे बाकी लोगों को, वी विल प्रोवाइड मोर लोन टू अदर कंट्रीज दैट रिक्वायर इट। तो यूएस से बहुत सारा इंपोर्ट आने लग गया दूसरे देशों में, एक्सपोर्ट जाने लग गया, ठीक है। और इसकी वजह से यूरोपियन रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। इसीलिए 1923 में अगर आपको याद होगा, जब हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में आया था, तो यूएस स्टेप्स इन एंड सेज वी विल प्रोवाइड यू शॉर्ट टर्म लोन्स, इससे आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर लो, बिकॉज यूएस वाज बिल्डिंग इट्स इकोनॉमी वेरी वेरी एक्सपोनेंशियली, सो दे हैड अ लॉट ऑफ मनी। और इस वजह से वर्ल्ड ट्रेड जो है, जो पहले इंडिया और चाइना से यूरोप में शिफ्ट हुआ था, अब वो यूएस में शिफ्ट हो गया, पूरा ही वेस्टवर्ड शिफ्ट हो गया फॉर अनदर ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। लेकिन ये समय बहुत लंबा नहीं चला। 1929 में उनको ग्रेट डिप्रेशन हिट करता है और उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है, सब कुछ फिर से डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन बच्चे शुरू होगा अराउंड 1929 और कुछ 1-1.5 साल 1930s तक चलेगा। हालांकि वो पीरियड उतने दिन का चलेगा, लेकिन उससे वापस वॉर के बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन, इससे रिवाइव करके बाहर निकलने में लोगों को बहुत समय लगेगा और बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये डिप्रेशन जो है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ आपका यूएस में, लेकिन पूरी दुनिया बहुत ज्यादा डिक्लाइन जो है, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सब चीजों में सफर करेगी। यहाँ पे टाइम जो है और इम्पैक्ट जो है डिप्रेशन का, वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग होगा। यूएस का बहुत हैवी था बट वो रिवाइव फिर भी कर जाएगी। अब जैसे ब्रिटेन जैसे कंट्री के लिए फिर से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट जर्मनी जैसे कंट्री के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो ज्यादातर प्रॉब्लम उन जगहों पे और होने लग गई जो ज्यादा एग्रीकल्चरल वाले रीजन्स थे, वो कम्युनिटीज में बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल फूड के प्राइसेस गिरते हैं। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 के आफ्टर इफेक्ट में हमने देखा कि इंडिया के फार्मर्स बहुत ज्यादा बुरी तरीके से सफर कर रहे थे, इसलिए भी हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फिर लॉन्च कर दिया था, ठीक है। और इंडस्ट्रीज के लिए रिवाइव करना थोड़ा आसान था, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, ठीक है। सो विल हैव अनदर क्वेश्चन। The housing and the consumer boom of 1920s created the basis of prosperity in the US. True or false?
Okay, and we'll look at the answer. It is true. So, guys, we have to understand that एवरीथिंग वाज वर्किंग ऑन क्रेडिट. आपको ये समझना होगा कि ये ग्रेट डिप्रेशन का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, क्यों आया? लोन्स मिल रही थी, इसीलिए लोग जो है इतना सारा लोन ले रहे थे, घर खरीद रहे थे, बाकी सामान खरीद रहे थे, आराम से चल पा रहे थे. बट लोन का प्रोजेक्शन एक्चुअल प्रोजेक्शन नहीं होता है. क्या लोग लोन्स पे बैक भी कर पा रहे थे? क्या उनके पास बैंडविड्थ था? ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो हम देखेंगे कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन आता है वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से आता है. और उसमें सबसे बड़ा तो ये है कि वॉर के बाद की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही फ्रिजाइल, बहुत ही सेंसिटिव थी. वो पहले से बहुत कमजोर थी, वहां पहले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था. ठीक है, तो आपको एक एक करके फैक्टर्स जो हैं वो हम समझेंगे. दीज आर द फैक्टर्स. ये फैक्टर्स मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी. कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इन माइंड, विल डिस्कवर ऑल द फैक्टर्स मच मोर इन डिटेल टू अंडरस्टैंड व्हाट अल्टीमेटली लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन. हाउ डिड द मार्केट जस्ट क्रैश वन डे? ठीक है, सो आई एम गोना पॉज ओवर हियर. लेट्स समराइज व्हाट वी हैव डन. So we majorly understood that Great Depression had hit, मार्केट क्रैश कर जाती है फेलियर में. उसके पहले हमने समझा कि कैसे हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन की पूरी सिस्टम को शुरू किया था, which was inspired by a slaughterhouse. But then that increased the efficiency and the amount of production that he was doing, and he compensated for it by, of course, the pressure on the people were increasing a lot, but उसको compensate कर दिया high wages से. ठीक है, और आपको एक चीज ये ध्यान रखनी होगी, बहुत मोनोटोनस था, लोगों के पास चैलेंज कुछ भी नहीं था, नया सीखने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी हर एक इंडिविजुअल और हर एक लेबरर की. ठीक है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक लास्ट नहीं करती है. ग्रेट डिप्रेशन जो है आ जाता है. और यहाँ पे साइक्लिक कैसे मूवमेंट था कि कैसे हाउसिंग लोन्स की वजह से लोग घर खरीद रहे थे, उससे कंजम्पशन बढ़ रहा था, कंजम्पशन से प्रोडक्शन बढ़ रहा था, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट से कंसिस्टेंट इनकम बढ़ रहा था, और उस कंसिस्टेंट इनकम की वजह से फिर से प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ रहा था. एंड हाउ दिस होल साइकिल वेंट. ओके, so with this guys, I'm gonna end the session now. Thank you so much for being here. अगले सेशन में हम इंडिया के ग्रेट डिप्रेशन, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, इन सब के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप बिल्कुल भी मत भूलना हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ इम्बाइब VLE को चेकआउट करना. ये डेवलपमेंट कैसे वर्ल्ड बैंक या IMF जो आज के दिन में एग्जिस्ट करते हैं, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी जो एग्जिस्ट करता है, जहां लोग एक दूसरे से लोन ले रहे हैं, हम कैसे यहाँ पे पहुंच पाए, कैसे हमने हमारा एक्सचेंज सिस्टम स्टैब्लिश किया, ये सब कुछ हम जानेंगे अगले सेशन में. So do not forget to practice some questions from this session, and definitely remember to download and check out all the Imbibe applications. ठीक है? So with this, we have come to the end. Thank you so much everyone for being here. If you guys do come across any doubts, any queries, feel free to check it out in the chat. Comment kar do and I will reply to you. Otherwise, I'm just gonna end the session. Thank you so much for being here. Do make sure to share the video with your friends. Have a great evening, everyone. Take good care of yourselves. Stay tuned and keep imbibing. Hasta la vista. Bye bye. Ciao. Have a great evening and good night. Take care.